السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کلاس 8 کے لیے آج کا ٹاپک جو ہے دیٹ از دا رول آف ہارمونز ان کمپلیٹنگ دا لائف ہسٹری آف دا انسیکٹس اینڈ دا فراگس۔ ٹھیک، تو رول آف ہارمونز ان کمپلیٹنگ دا لائف ہسٹری آف انسیکٹس اینڈ دا فراگس۔ ٹھیک، تو ہارمونز جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، پہلے ہم نے ہارمونز کے بارے میں پڑھا، ہیومن بینگس میں ہارمونز جو ہوتے ہیں کیا کیا ہارمونز ان میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک، ان کا کام کیا ہوتا ہے، ان کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ ہارمونز جو ہوتے ہیں ادر دین سیکس ہارمونز جو ہوتے ہیں جو ہماری باڈی میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک، ان کا کام وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک، اسی طریقے اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں آج کا ٹاپک جو ہے دیٹ از رول آف ہارمونز ان کمپلیٹنگ دا لائف ہسٹری آف انسیکٹس اینڈ فراگس، جو انسیکٹس ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں فراگس جو پائے جاتے ہیں، ٹھیک، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہارمون جو ہوتے ہیں وہ کیا رول وہاں پہ کرتے ہیں، اور ان کی لائف ہسٹری جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، تو ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ آپ نے دیکھی ہوگی لائف ہسٹری آف سلک ورم اینڈ فراگ۔ ٹھیک، تو ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ لائف ہسٹری آف دا سلک ورم جو ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے فراگ جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی۔ ٹھیک، تو وہاں پہ آپ نے کیا دیکھا ہوگا کہ ہم دیکھتے ہیں اگر ہم سلک ورم کو دیکھتے ہیں، ٹھیک، یا فراگ کو دیکھتے ہیں، ٹھیک، ان کی لائف ہسٹری جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ سٹارٹ ہوتی ہے کہاں سے، وہ دیکھتے ہیں وہ سٹارٹ ہوتی ہے فرام دا ایگس۔ ٹھیک، ان کے فیمیل جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایگس لے کرتے ہیں۔ ٹھیک، ایگس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اگر فراگ کی بات کرتے ہیں، ٹھیک، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ لاروا بن جاتا ہے۔ ٹھیک، لاروا کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ٹیڈ پول بن جاتا ہے۔ ٹھیک، وہ ٹیڈ پول آہستہ آہستہ جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ چینج ہوتا ہے انٹو دا فراگ۔ ٹھیک، اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جو سلک ورم ہوتا ہے، ٹھیک، تو سلک ورم جو ہوتا ہے ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں فیمیل جو ہوتے ہیں وہ ایگس لے کرتے ہیں۔ ٹھیک، ایگس لے کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ وہ ایگس جو ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے ہیں کیٹل پلر میں۔ ٹھیک، اور کیٹل پلر جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ پھر کیٹل پلر جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ پھر پیوپا میں چینج ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں پیوپا جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، یہی سلک ورم جو ہوتا ہے اپنے آس پاس کورنگ بنا لیتا ہے۔ ٹھیک، دیٹ از نون ایز، اس کو پیوپا اس سٹیج کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو اسی کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہ سلک جو ہوتا ہے وہ اس کو اپنے آس پاس وہاں پہ لگا دیتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ ہم دیکھتے ہیں یہ لائف ہسٹری جو ہوتی ہے ان کی ہم دیکھتے ہیں وہ سٹارٹ ہوتی ہے کہاں، وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایگ سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں پھر یہ سلک ورم جو ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کا کیٹل پلر جو ہوتا ہے، کیٹل پلر جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ایگ کو بن جاتا ہے۔ ٹھیک، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں پھر اس میں جو ہے اڈلٹ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں فراگ میں جو ہوتا ہے، ٹھیک، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ٹیڈ پول ہوتا ہے، TADPOLE، ٹیڈ پول۔ ٹھیک، تو ٹیڈ پول جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ چینج ہوتا ہے انٹو دا اڈلٹ فراگ۔ ٹھیک، تو یہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ والی چینج جو ہوتی ہے جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے ریپروڈکشن میں ہی پڑھا ہے۔ ٹھیک، تو یہ والی چینج جو ہوتی ہے دس چینج فرام larva 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 to adult 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 is called metamorphosis۔ ٹھیک، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لاروا جو ہوتا ہے جب یہ چینج ہوتا ہے کس میں، لاروا جو ہوتا ہے جب یہ چینج ہوتا ہے اڈلٹ میں، ٹھیک، تو وہاں پہ بہت ساری ڈراسٹک چینج ہم نے دیکھے جیسے آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا میٹامورفوسس کے بارے میں۔ ٹھیک، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں وہ والی چینجز، وہ والی ڈراسٹک چینجز، ٹھیک، دیٹ ٹیک پلیس ان دا لاروا، جو لاروا میں آتی ہے، وہ لاروا جو ہوتا ہے وہ اڈلٹ بن جاتا ہے، دیٹ پروسیس نون ایز، اس کو میٹامورفوسس کہا جاتا ہے۔ اور یہی میٹامورفوسس جو ہوتی ہے جو انسیکٹس میں ہوتی ہے، میٹامورفوسس in insects is controlled by the insect hormones۔ ٹھیک، تو یہ میٹامورفوسس جو ہوتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ سلک ورم جو ہوتا ہے یا ہم دیکھتے ہیں سلک ورم جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایگس لے کرتا ہے، ایگس لے کرنے کے بعد وہاں پہ کیٹل پلر بن جاتا ہے۔ ٹھیک، اور یہ کیٹل پلر جو ہوتا ہے یہ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ کیا بن جاتا ہے، پھر یہ ہم دیکھتے ہیں پھر اڈلٹ بن جاتا ہے۔ ٹھیک، تو ان میں جو میٹامورفوسس ہوتی ہے، ٹھیک، جو ہم دیکھتے ہیں ان میں چینج لاروا جو ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے ان دا ایڈلٹ میں۔ ٹھیک، تو یہ میٹامورفوسس جو ہوتی ہے دیٹ از کنٹرولڈ بائی دا انسیکٹ
हार्मोन्स, तो इंसेक्ट हार्मोन्स के जरिए हम देखते हैं ये मेटामॉर्फोसिस जो है ये हम देखते हैं ये कंट्रोल होती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रॉग की बात करते हैं, ठीक, तो फ्रॉग में हम देखते हैं फ्रॉग में हम देखते हैं मेटामॉर्फोसिस जो होती है, फ्रॉग जो होती है इसमें हम देखते हैं मेटामॉर्फोसिस is controlled by thyroxine, THYROXINE, thyroxine। ठीक, तो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है जो हम देखते हैं थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, ठीक, तो ये हम देखते हैं ये वाला हार्मोन जो होता है ये हम देखते हैं ये मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है, लेकिन वो वाली मेटामॉर्फोसिस जो हम देखते हैं जो फ्रॉग में होते हैं, ठीक, तो फ्रॉग में हम देखते हैं इसका टेडपोल जो होता है इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है। ठीक, टेडपोल के पीछे आप देखते हैं वहाँ पे उसमें टेल पाए जाते हैं, टेल जो होती है वो मेटामॉर्फोसिस के जरिए हम देखते हैं उसमें कट हो जाते हैं। ठीक, और ये टेडपोल जो होता है ये रिजेंबल करता है अडल्ट फ्रॉग के साथ। ठीक, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि मेटामॉर्फोसिस जो फ्रॉग में होती है डेट इज कंट्रोल्ड बाय द थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो हम देखें वो मेटामॉर्फोसिस पे कंट्रोल करता है, और ये वाला थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है इसको प्रोड्यूस करता है कौन सा ग्लैंड, डेट इज प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड, THYROID। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो हम देखते हैं वो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है उसको सेक्रेट करता है या उसको प्रोड्यूस कर लेता है। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि थायरोक्सिन जो होता है ये हम देखते हैं थायरोक्सिन प्रोडक्शन जो होती है दे रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ द आयोडीन। ठीक, थायरोक्सिन प्रोडक्शन needs the production of thyroxine production जो है they needs the presence of iodine in water। तो हम देखते हैं कि ये टेडपोल जो होता है ये हम देखते हैं वाटर में पाया जाता है। ठीक, और वहाँ पे हम देखते हैं कि थायरोक्सिन प्रोडक्शन के लिए थायरोक्सिन बनाने के लिए हम देखते हैं वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ आयोडीन जो है वो जरूरी होना चाहिए। जैसे हमने इससे पहले भी थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा थे, तो थायराइड ग्लैंड जो होता है वो सेक्रेट करता है वो प्रोड्यूस कर लेता है थायरोक्सिन हार्मोन को। ठीक, लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन बनने के लिए हम देखते हैं वहाँ पे भी हम देखते हैं हमारी बॉडी में भी जो है वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे आयोडीन का होना जो है वो बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि हम देखते हैं वाटर जो होता है उसमें भी हम देखते हैं थायरोक्सिन प्रोडक्शन जो होती है वो वहाँ पे होती थी, वो थायरोक्सिन प्रोडक्शन के लिए हम देखते हैं वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे आयोडीन का होना जो पानी में आयोडीन का होना जो है वो जरूरी है। ठीक, तो हम देखते हैं वो वाला वाटर जिसमें हम देखते हैं इन विच द टेडपोल डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन। ठीक, तो हम देखते हैं वो वाला वाटर डेट does not contain sufficient iodine। ठीक, तो वो वाला पानी जहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पे सफिशिएंट आयोडीन जो है वो नहीं पाया जाता, वो वाला पानी जहाँ पे हम देखते हैं सफिशिएंट आयोडीन जो है वो नहीं पाया जाता है, वहाँ पे क्या होता है द टेडपोल्स कैन नॉट बिकम एडल्ट्स, द टेडपोल्स कैन नॉट बिकम एडल्ट्स। ठीक, तो हम देखते हैं वो वाला पानी जहाँ पे हम देखते हैं सफिशिएंट आयोडीन जो है वो वहाँ पे नहीं पाया जाता। जब वहाँ पे सफिशिएंट आयोडीन नहीं पाया जाता तो डेट में वहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो जाएगा। ठीक, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं जो वहाँ पे टेडपोल्स होते हैं जिस वाटर में हम देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं सफिशिएंट आयोडीन नहीं पाया जाता तो वहाँ के टेडपोल जो होते हैं वो हम देखते हैं दे कैन नॉट बिकम एडल्ट, तो वो हम देखते हैं वो एडल्ट नहीं बन सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आयोडीन जो होता है वो हम देखते हैं वो नेसेसरी है किसके लिए, वो नेसेसरी है डेट इज इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द इंसेक्ट्स एंड द फ्रॉग्स। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम ये देखते हैं कि ये जो होते हैं ह्यूमन बीइंग जो होते हैं अगर हम देखते हैं हमारा ये जो हमारी डाइट जो है उसमें एनफ आयोडीन जो है वो नहीं पाया जाता है। ठीक, तो एनफ आयोडीन जो है वो नहीं पाया जाता है। ठीक, तो हम देखते हैं वी विल सफर फ्रॉम द ग्वाइटर, जैसे इससे पहले भी हमने पढ़ा था। ठीक, तो वी विल सफर फ्रॉम द ग्वाइटर, हमें ग्वाइटर की जो डिजीज जो है वो लग सकती है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें आयोडाइज्ड साल्ट जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए अपने डाइट के साथ। ठीक, तो हमारी डाइट जो है उसमें हम देखते हैं फिर आयोडीन जो है उसकी कमी जो है वो दूर हो जाती है और ग्वाइटर जो है उससे हम बच सकते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं और एक टॉपिक जो है इसमें डेट इज रिप्रोडक्टिव
रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है किसको कहा जाता है? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो हम देखते हैं इसमें डेफिनेशन जो है दैट इज द फिजिकल एंड मेंटल MENTAL मेंटल well-being BEING being of an individual तो डेट इज नोन एज, उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहा जाता है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है वो हम देखते हैं एक इंसान जो है, एक पर्सन जो वो फिजिकली फिट होना चाहे, मेंटली फिट होना चाहे, इमोशनली जो है वो फिट होना चाहे। ठीक, जब वो हर तरीके से जो है फिट होगा, ठीक, तो डेट इज नोन एज, उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहा जाता है। ठीक, तो हम देखते हैं कि ये जो है हेल्दी रहने के लिए, ठीक, तो बॉडी जो है उसको हेल्दी रखने के लिए, बॉडी हेल्दी रखने के लिए हम देखते हैं एक पर्सन जो होता है एक पर्सन जो होता है दैट नीड्स द बैलेंस्ड डाइट, हैव ए बैलेंस्ड डाइट। ठीक, तो एक पर्सन जो है वो ये चाहता है कि मेरी बॉडी जो है वो हेल्दी रहे, वो सेहतमंद रहे। ठीक, तो उसमें हम देखते हैं एट एनी एज हम देखते हैं कि वहाँ पे हम देखते हैं उसको बैलेंस्ड डाइट जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और बैलेंस्ड डाइट में हम देखते हैं वहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक, तो बैलेंस्ड डाइट जो होते हैं उसमें हम देखते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं उसमें पर्सनल हाइजीन होना चाहिए। ठीक, पर्सनल हाइजीन HYGIENE पर्सनल हाइजीन एंड educate ADEQUAT educate physical exercise। ठीक, तो हम देखते हैं कि अपनी बॉडी जो है, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए जो है एक पर्सन जो है उसको बैलेंस्ड डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक, तो बैलेंस्ड डाइट जो है वो एक ऐसी डाइट पाई जाती है, ठीक, जिसमें हम देखते हैं न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स में हम देखते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं, फिट्स आ जाते हैं, ठीक, विटामिन एंड मिनरल्स आते हैं, और इसी तरीके से हम देखते हैं वाटर आता है। ठीक, तो वो वाले न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनसे हम क्या देखते हैं, वो हम देखते हैं वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये जो होता है एक बॉडी को हम देखते हैं हेल्दी रखने के लिए, वहाँ पे हम देखते हैं एक पर्सन जो उसका पर्सनल हाइजीन होना चाहिए। हाइजीन का मतलब है, पर्सनल हाइजीन का मतलब है वो साफ सुथरा अपने जिस्म जो है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। तो हम देखते हैं कि तकरीबन हम देखते हैं कि एवरी वन जो है डेट शुड हैव ए बाथ एट लीस्ट वंस एवरी डे। ठीक, तो हम देखते हैं दिन में एक बार जो है हर कोई जो है वो हम देखते हैं वो बात करना चाहिए, वो नहाना चाहिए। ठीक, क्योंकि हम देखते हैं टीन एजर्स में ही हम देखते हैं, टीन एजर्स में हम देखते हैं वहाँ हम देखते हैं स्वेट ग्लैंड जो होते हैं उनकी एक्टिविटी जो होती है वो हम देखते हैं वो वहाँ पे ज़्यादा होती है। ठीक, उस स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिविटी की वजह से हम देखते हैं वहाँ से स्वेट जो है वो ज़्यादा निकलता, पसीना जो है वो ज़्यादा निकलता है। ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं बॉडी जो होती है वो स्मेली हो जाती है, उससे हम देखते हैं बू आ जाती है। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं उसमें फिर खतरा होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। ठीक, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम देखते हैं कि उससे फिर बहुत सारे डिजीज जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं गर्ल जो है वो हम देखते हैं उनको स्पेशल केयर लेना चाहिए क्लीननेस का ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है या पीरियड होता है उसमें उनको अपने आप को बहुत ही साफ सुथरा रखना चाहिए। तो उसको हम कहते हैं डेट इज नोन एज, उसको पर्सनल हाइजीन कहा जाता है। ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं एडुकेट फिजिकल एक्सरसाइज कि हम देखते हैं जो ये होते हैं टीन एजर जो होते हैं इनको वॉकिंग करनी चाहिए। ठीक, इनको प्लेइंग करनी चाहिए। ठीक, क्योंकि फ्रेश एयर जो है उसमें बैठना चाहिए। ठीक, तो इससे क्या होता है वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे उनकी ये जो है बॉडी जो है वो फिट रह सकते हैं, जिनमें बॉडी जो है वो हेल्दी रह सकती है। ठीक, तो जब उनकी बॉडी जो है वो हेल्दी रह सकेगी। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है डेट मीन्स उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होंगे वो भी हम देखते हैं वो अच्छे तरीके से हम देखते हैं वहाँ पे फंक्शनल हो जाए, वो हम देखते हैं वो वहाँ पे फंक्शनल हो जाते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं जब हम देखते हैं हम क्योंकि एडोलेसेंस में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो एडोलेसेंस में हम देखते हैं एक टॉपिक यहाँ पे आता है डेट इज से नो टू ड्रग्स। से नो टू ड्रग्स। तो हम देखते हैं एडोलेसेंस पीरियड जो होता है वो हम देखते हैं वो एक ऐसा पीरियड पाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड द माइंड चलती है। ठीक, दैट इज द मच एक्टिविटी इन द बॉडी
एंड माइंड। जो एडोलेसेंट्स का माइंड होता है और इसी तरह से हम देखते हैं बॉडी जो होती है उसमें हम देखते हैं उसमें बहुत सारे एक्टिविटी जो होते रहते हैं, ठीक। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो हम देखते हैं बहुत सारे केस में हम देखते हैं वो वहाँ पे कंफ्यूज भी होते हैं, ठीक, वो कंफ्यूज्ड भी होते हैं, ठीक, बहुत सारे केस में कंफ्यूज्ड भी होते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं बहुत सारे केस में हम देखते हैं वो अपने आप को इनसिक्योर भी फील करते हैं, वो अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं टीनेजर जो होते हैं वो हम देखते हैं वो अपने आप को कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं, ठीक। तो उस तरीके से हम उस तरीके में हम क्या देखते हैं कि उनको कोई दोस्त जो होता है या कोई और उनको मिलता है तो उनको वो कहता है कि आपको रिलीफ मिल सकता है कि आप जो कंफ्यूज्ड है, आप अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे, या आपके इमोशन जो है, ठीक, इनको कंट्रोल में रखने के लिए जो है वो उनको कहते हैं आपको रिलीफ मिल सकता है, ठीक। लेकिन रिलीफ आपको मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ द ड्रग्स। आप ड्रग्स का इस्तेमाल करो, ठीक, और ड्रग्स के इस्तेमाल के जरिए आप देखोगे कि आप रिलीफ पाओगे। जो भी आप कंफ्यूजन अपने आप को पाते हो, इनसिक्योर अपने आप को पाते हो, ठीक, या आपके अंदर जो इमोशनली जो है आप अपने आप को फिट नहीं समझते हो, ठीक, तो आपको रिलीफ मिल सकता है। तो रिलीफ आपको एक चीज़ से मिल सकता है कि आप ड्रग्स का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक। लेकिन टीनेजर जो है उनको कहना चाहिए नो, ठीक। तो डेट मीन्स कि ड्रग्स का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए, ठीक, अनलेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, ठीक। जब तक डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करे तो ड्रग्स का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए, ठीक। तो ड्रग्स जो होते हैं दे आर एडिक्टिव, ड्रग्स और एडिक्टिव, ADDICTIV, एडिक्टिव, ठीक। तो इनसे क्या होता है, इनसे फिर आदत बन जाती है कि एक बार अगर आप ड्रग जो है वो आप लेते हो, ठीक, तो उसके बाद आप एडिक्टिव बन जाते हो, ठीक, हैबिचुअल इंसान जो है वो बन जाता है, ठीक। बार बार फिर वो ड्रग्स का जो है वो इस्तेमाल कर उनके बगैर फिर वो नहीं रह सकता है, ठीक। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि वो फिर अगेन एंड अगेन जो होता है हम देखते हैं वो वाला पर्सन जो है वो हम देखते हैं वो ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। जब वो ड्रग्स का इस्तेमाल करता है अगेन एंड अगेन जो है अगेन एंड अगेन जो होता है एक पर्सन जो होता है वो हम देखते हैं वो ड्रग्स को इस्तेमाल करता है, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं इसमें क्या होता है, ये ड्रग जो होते हैं दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन, दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन, ठीक। तो हम देखते हैं लॉन्ग रन में हम क्या देखते हैं कि ये एडोलेसेंट जो होते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो हम देखते हैं वो तबाह बर्बाद हो जाती है, ठीक। और इसी तरीके से हम देखते हैं इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ये ड्रग जो होते दे आल्सो ruin द हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो हम देखते हैं ड्रग्स की वजह से हम देखते हैं हेल्थ जो होता है वो भी हम देखते हैं वो तबाह बर्बाद हो जाता है, हैप्पीनेस जो होती है खुशी जो होती है वो भी हम देखते हैं वो तबाह बर्बाद हो जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि ड्रग जो है से नो टू ड्रग्स। आप देखते हो गाड़ियों पे भी लिखा होता है, ठीक, हर किसी जगह पे आप देखते हो, ठीक, वहाँ पे होता है से नो टू ड्रग्स। इसलिए ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं कर, एक बार आप इसके एडिक्टिव हो गए थे तो उसके बाद इससे जान छुड़ानी जो है वो काफी मुश्किल हो जाती है। तो इससे हम देखते हैं बहुत सारे हम देखते हैं इसके इल इफेक्ट जो होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट जो होते हैं वो फिर बॉडी पे पड़ जाते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि एडोलेसेंस प्रेगनेंसी जो होती है, ठीक, एडोलेसेंस ADOLESCENT एडोलेसेंस प्रेगनेंसी, ठीक। तो एडोलेसेंस प्रेगनेंसी जो है उसमें क्या होता है, ठीक। तो आप देखते हो लीगल एज जो है, लीगल एज फॉर मैरिज, तो लीगल एज फॉर मैरिज जो है डेट इज 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स, 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स। गर्ल जो होते हैं उनके लिए हम देखते हैं 18 ईयर जो है वो पाए जाते थे। और इसी तरीके से हम देखते हैं 21 ईयर जो है वो हम देखते हैं फॉर बॉयज पाई जाती है। एक लड़का जो है, ठीक, उसको शादी करने थी तो शादी करने के लिए हम देखते उसकी एज जो है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए थी और लड़की की एज जो है वो 18 ईयर्स की होनी चाहिए थी। तो इससे कम जो है
इससे कम जो है अगर हम देखते हैं 18 ईयर्स की कम एज जो है गर्ल जो है और इसी से 21 ईयर्स का बॉय जो है ठीक उनकी शादी कर लेते हैं ठीक। तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं एक ये जो होता है एडोलेसेंट जो होता है वो हम देखते हैं वो मेंटली फिट नहीं होता है ठीक। या हम देखते हैं कि ये गर्ल जो होती है वो मेंटली फिट नहीं होती है, फिजिकली फिट नहीं होती है फॉर द मदरहुड ठीक। और इसी तरीके से हम देखते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम मदरहुड जो होते हैं उसमें हम देखते हैं इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ठीक बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ठीक। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि उसका जो ये होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है वो भी हम देखते हैं वो ठीक नहीं होता है ठीक। तो इससे हम देखते हैं एक ये जो होती है एडोलेसेंट मदर जो होती है उसमें हम देखते हैं उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ठीक। तो इसलिए जो है एडोलेसेंट प्रेगनेंसी जो होती है वो नहीं होनी चाहिए ठीक। तो 18 ईयर्स जो है वो एज है गर्ल्स के लिए ठीक। उसके बाद हम देखते हैं वो शादी कर सकते हैं और 21 ईयर जो है वो बॉयज के लिए है ठीक। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये वाला चैप्टर जो है डेट मीनस ये वाला चैप्टर जो डेट एडोलेसेंट जो है एडोलेसेंट जो है ये खत्म हो गया ठीक। तो कल से जो है इसके क्वेश्चन कर दें हैं ठीक। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।